In this video, I am going to explain about the teaching learning materials in science. इस वीडियो में शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में सीखेंगे. TLMs or teaching learning materials are any collection of materials including animate and inanimate objects that a teacher may use in teaching learning situations for the achievement of desired learning objectives. शिक्षण अधिगम सामग्री जीव या निर्जीव वस्तुएं हो सकते हैं या मानव या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं. According to Kinder S. James, teaching aids are any device which can be used to make the learning experience more concrete, more realistic, and more dynamic. According to Burton, audiovisual aids are those sensory objects or images which initiate or stimulate and reinforce learning. कार्टर वी गुड के अनुसार शिक्षण सामग्री वह सहायक सामग्री है जो प्रेरणा, वर्गीकरण और उत्तेजना सीखने की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं. According to Edgar Dale, audiovisual aids are those devices by the use of which communication of ideas between persons and groups in various teaching and training situations is helped. These are also termed as multi-sensory materials. मैकीन और रॉबर्ट्स के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री एक पूरक उपकरण है जिसके द्वारा शिक्षक एक से अधिक सेंसरी चैनल के उपयोग के माध्यम से अवधारणाओं, व्याख्याओं और प्रशंसा को स्पष्ट और सहसंबंधित करने में सक्षम है. According to K.P. Nirja, an audiovisual aid is an instructional device in which the message can be heard as well as seen. In 1964 में एडगर डेल अपने बुक ऑडियो मेथड्स इन टीचिंग में शिक्षण अधिगम सामग्री के मूल्यों को एक कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस के रूप में प्रदर्शित किया है. From this cone, it is clear that the verbal experiences are at the lowest level and direct experiences are considered as most effective learning experiences. Now let us know about using TLMs. शिक्षण अधिगम सामग्री के उद्देश्य क्या है? ये सामग्री कक्षा में प्रत्येक छात्र को एक सक्रिय भागीदार बनाते हैं. वे छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से संबंधित होने में मदद करते हैं. वे बेहतर सीखने के लिए रिइंफोर्समेंट प्रदान करते हैं. वे समय बचाते हैं. जो विद्यार्थी दिए गए समय में लगभग 35% अधिक सीखते हैं और 55% अधिक समय तक ज्ञान रिटेन होता है. TLMs रुचि पैदा करते हैं और छात्रों की शारीरिक और मानसिक एक्टिविटी को उत्तेजित करते हैं. They reduce verbalism and contributes towards the accuracy in learning. They extend first-hand experience when the students see a demonstration, handle the apparatus, perform the experiment themselves, and prepare charts, models, etc. What should be the characteristics of TLMs? शिक्षण अधिगम सामग्री के विशेषताएं क्या होनी चाहिए? वे सार्थक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए. स्टूडेंट्स को प्रेरित करना चाहिए. एक्यूरेट होना चाहिए. सिंपल और चीप होना चाहिए. आकार में बड़ा होना चाहिए. अप टू डेट होना चाहिए. पोर्टेबल होना चाहिए.
अधिक कक्षाओं में उपयोग करने लायक होना चाहिए, अधिक विषयों में उपयोग करने लायक होना चाहिए, स्टूडेंट्स को हानिकारक नहीं होना चाहिए। What should be the principles for selection of TLMs? The first principle is integration with learning. शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षा प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए और कक्षा के पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त होना चाहिए, केवल मनोरंजक नहीं होना चाहिए। Second principle is they should be age appropriate. छात्रों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास के अनुरूप अनुभव के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। They should have educational utility या शैक्षिक उपयोगिता। The teaching aid selected should satisfy the purpose for which it is used. Now we shall know about the principles for using of TLMs. The teacher should be well skilled in the use of the aid. It should not substitute but supplement the teacher's work. शिक्षक सामग्री को उपयोग करने में अच्छी तरह से कुशल होना चाहिए। बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। छात्रों को प्रश्न पूछना, प्रश्नों का उत्तर देना, कमेंट करना और डिस्कस करना चाहिए। ये सामग्री को ठीक से संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए, बिकॉज a spoiled chart or a broken model may discourage or reduce the interest of a student. Teaching aids एक सुविधाजनक स्थान पर रखा जाना चाहिए। Coming to the classification of TLMs, one way is to classify under two categories, that is the projected aids and non-projected aids. Projected or prakshepit samagri. These are projected on screen or even on whitewashed wall to get an enlarged image. They include slides, film strips, transparencies, etc. Non-projected teaching aids are materials like maps, charts, models, etc. These aids are not costly, therefore non-projected aids can be easily used with good results. Another way of classification of TLMs is into audio aids, visual aids, audio-visual aids and activity aids. Audio aids means श्रव्य साधन या श्रव्य उपकरण। छात्र अपने श्रवणेंद्रियों का उपयोग करते हैं। Examples रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन etc. Visual aids means दृश्य साधन या इसमें छात्र अपने आँखों का उपयोग करते हैं। Example charts, models, slides etc. Audio visual aids means श्रव्य दृश्य साधन। छात्र अपने आँख और कर्ण दोनों का उपयोग करते हैं। Example टेलीविज़न, फिल्म्स, वीडियोस etc. Activity aids या क्रियात्मक साधन जिसमें छात्र सक्रिय रहते हैं। Example साइंस फेयर्स, साइंस एग्जीबिशन, साइंस म्यूजियम्स etc. ऑडियो एड्स में टेप रिकॉर्डर एसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्ड किया गया ध्वनि को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं और मिटा सकते हैं। एमिनेंट स्कॉलर्स द्वारा बातचीत का रिकॉर्ड आसानी से कक्षा में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। Such recordings could be used to introduce a topic or to develop it. ऑडियो एड्स का लाभ के बारे में जानेंगे। ये सस्ती हैं। एक बार ये उपकरण खरीदने के बाद एडिशनल कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि टेप्स को पुनः उपयोग किया जा सकता है।
Audio cassette recorders are portable and can be used outside the classroom because they can be run on battery. ये उपकरण घर में अध्ययन के लिए आदर्श होते हैं क्योंकि छात्र अपने कैसेट प्लेयर खरीद सकते हैं और ऑडियो टेप्स को आसानी से कॉपी कर सकते हैं. Now, what are the limitations of audio aids? The biggest drawback is lack of video support and it is not interactive. प्रेजेंटेशन केवल एक पूर्व निर्धारित सीक्वेंस में होती है. Next, coming to visual aids, the chart is a visual aid which depicts pictorial and written key information in systematic way to summarize, compare, example anatomical charts and figures, diagrams, etc. चित्र और लिखित जानकारी को व्यवस्थित तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत करने, तुलना करने आदि कार्य के लिए चार्ट को उपयोग करते हैं. चार्ट का क्या पर्पस है वह जानेंगे. चार्ट किसी वस्तु की कल्पना करने के लिए मदद करता है क्योंकि केवल शब्दों से समझाना मुश्किल होता है. महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. एक रूपरेखा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. टू शो कंटिन्यूटी इन प्रोसेस और समस्याओं के निर्माण और उत्तेजक सोच के लिए चार्ट उपयोग किया जा सकता है. We will try to know about different types of charts. विभिन्न प्रकार के चार्ट्स के बारे में जानेंगे. नैरेटिव चार्ट्स किसी महत्वपूर्ण फैक्ट्स या आइडियाज़ को अरेंज करने के लिए या विकास में घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, तथ्यों और विचारों की व्यवस्था करने के लिए या इम्प्रूवमेंट ओवर ईयर्स दिखाने के लिए नैरेटिव चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं. कॉज एंड इफ़ेक्ट चार्ट्स कारण और प्रभाव चार्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या परिवर्तन या संघर्ष के बीच संबंधों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है. चेन चार्ट एक सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए ये चार्ट्स उपयोग कर सकते हैं. इवोल्यूशन चार्ट या विकास चार्ट आरंभिक डेटा और भविष्य के अनुमानों से विशिष्ट वस्तुओं में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए ये चार्ट्स उपयोग कर सकते हैं. स्ट्रिप टीज चार्ट इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप देने के लिए उपयोग कर सकते हैं. पुल चार्ट इसमें लिखित संदेश होते हैं जो मोटे कागज के स्ट्रिप्स के द्वारा छिपे होते हैं. संदेश को एक के बाद एक छिपी हुई पट्टियों को खींचकर दर्शक को दिखाया जा सकता है. फ्लो चार्ट इस चार्ट में लाइंस, रेक्टेंगल, सर्कल्स, एरोस के द्वारा जुड़े होते हैं जो फंक्शनल रिलेशनशिप्स को दिखाते हैं. टैबुलेशन चार्ट एक कक्षा टाइम टेबल या कोई एक्टिविटी का शेड्यूल दर्शाने के लिए ये चार्ट यूज़ कर सकते हैं. फ्लिप चार्ट स्पेसिफिक टॉपिक से संबंधित चार्ट्स का एक सेट बना के हैंग किया जा सकता है. इंडिविजुअल चार्ट में अनुक्रम में संबंधित संदेशों की एक श्रृंखला शामिल किया जाएगा. पाई चार्ट एक सर्कल तैयार किया जाएगा और अलग अलग वर्गों में बनाया जाएगा. अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग कोड दिया जाएगा और चार्ट के राइट कॉर्नर में कोड की दिया जाएगा. इस तरह टीचर को विभिन्न तरह के चार्ट्स को टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार उपयोग किया जा सकता है. अगर चार्ट्स को लोकली नहीं बनाया जा सकता है तो एजुकेशनल सेंटर्स से खरीदा जा सकता है. The next type of visual aids are posters. Posters are the graphic aids with short, quick and typical messages
with attention capturing paintings. इनका उद्देश्य है प्रेरणा प्रदान करना, एस्थेटिक इफेक्ट बनाना, सामान्य विषय को संप्रेषित करना। पोस्टर्स तैयार करने का नियम यह है, पोस्टर्स एक विशेष काम के लिए बनाया जाना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए, नियोजित संदेश को एक नज़र में बताने के लिए पोस्टर्स यूज़ किया जा सकता है। Next visual aids are graphs. Graphs are the visual teaching aids for presenting statistical data and contrasting the trends or changes of certain attributes. Methods of preparation. बार ग्राफ बनाने से पहले एक नोटबुक में इसका एक रफ स्केच बनाएं। अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग कलर्स का उपयोग करें। Write the key to the graph in a box on right hand side corner of the chart paper. Let us know about different types of graphs. Like bar graph, the graphic representation extends the scale horizontally along the length of the bars. Graphs are available in two forms, that is vertical and horizontal. Next, line graphs. Quantitative data are plotted or when the data is continuous. The concepts are represented with the help of lines drawn either horizontally or vertically. Next are the pictorial graphs. It is an outstanding method of graphic representation. Pictures are used for the expression of ideas. They are more attractive and easily understood. Vivid pictures will be used to create rapid association with the graphic message. Each visual symbol may be used to indicate the quantity. Pie graph is another type of graph. The data is represented through the sections of portions of a circle. Next type of visual aids are flashcards. Flashcards are a set of pictured paper cards of varying sizes that are flashed one by one in a logical sequence. Flashcards स्वनिर्मित या कमर्शियल रूप से तैयार किए जा सकते हैं और चार्ट या ड्राइंग पेपर पर इंक या कलर्स से चित्र बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स छोटे समूह के लिए उपयोगी हो सकते हैं और ग्रुप डिस्कशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स में इंफॉर्मेशन संक्षिप्त होना चाहिए। चित्र या तस्वीरों या कार्टून बना के कार्ड के पीछे कुछ लाइंस लिखी जाएगी। कॉमन साइज इज़ 10 इंच इंटू 12 इंच और 22 इंच इंटू 28 इंच। एक टॉपिक के लिए 10 से 12 कार्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह नंबर 3 से कम और 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। छात्रों को पाठ के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। जब आप कार्ड फ्लैश करते हैं तो छात्रों को उनके कार्यों के बारे में निर्देश दें। अपने दोनों हाथों से कार्ड को फ्लैश करें ताकि सभी छात्र उसे देख सकें। छात्र को जवाब देने का अवसर दें। फ्लैश कार्ड का चयन करके पाठ की समीक्षा करें। These are some of the tips for using the flashcards. Next visual aids are models. They are three-dimensional aids. A model is a recognizable representation of a real thing three-dimensionally. That is, height, width and depth is felt as reality. Let us look into different types of models. Solid models. यह मिट्टी,
प्लास्टर ऑफ पेरिस लकड़ी, लोहा जैसे सामग्री से बनी एक मूल चीज़ की प्रतिकृति है जो एक्सटर्नल पार्ट्स को दिखाती है, एग्जाम्पल ग्लोब, clay models, etc. The second type of models are cutaway and X-ray models. किसी चीज़ के आंतरिक भागों को दिखाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस तरह के मॉडल्स बनाने के लिए एक्सपर्टीज की आवश्यकता है। Other types of models are working models and sand models. Next type of visual aids are objects and specimens. A collection of real things for instructional use refers to objects, and a specimen is a sample of the real object or a material. शिक्षण सामग्री के रूप में नमूना और वस्तुओं का उपयोग करते समय एक शिक्षक को अपने दिमाग में फॉलोइंग पॉइंट्स रखनी चाहिए। स्पेसिमन सरल और प्रत्यक्ष अवलोकनों के साथ नियोजित करने के लिए होना चाहिए। स्पेसिमेन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछें। स्पेसिमेन के स्ट्रक्चरल डिटेल्स को स्पष्ट करें। परमानेंट लर्निंग के लिए समीक्षा और अभ्यास प्रदान करें। What are the sources of objects and specimens? स्थानीय बाजार, कारखाने, घर में मिला सामग्री, प्रकृति में पाया जाने वाले नमूने, फील्ड ट्रिप्स के दौरान कलेक्ट किए गए सामग्री, जंगली फूल, पत्तियों, पत्थर, तितलियां आदि नमूने इकट्ठा किया जा सकता है। The next category of teaching aids are audio-visual aids. श्रव्य दृश्य साधन. Audio-visual aids are the most important teaching learning aids as they involve both auditory and visual senses. वर्तमान समाज में टेलीविज़न का उपयोग महत्वपूर्ण TLMs में से एक है। यह एक रेडियो और एक फिल्म के फ़ायदों को जोड़ता है और मास एजुकेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है। दूरदर्शन पर UGC के कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। NCERT ने ज्ञान दर्शन चैनल पर अपने शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण करता है। वैज्ञानिक मुद्दों पर बड़ी संख्या में वैज्ञानिक कार्यक्रम टीवी के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। शिक्षक को स्वयं अपने छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी साइंस are informative channels made available through television. These channels enable us to see many programs on scientific issues with high definition transmission and give a better, more vivid watching experiences which are of educational value. The next type of AV aids are disc records. डिस्क रिकॉर्डिंग में कई विशेषताएं हैं जो इसे शिक्षण अधिगम का एक आकर्षक माध्यम बनाती है। It can reproduce audio spectrum even beyond the limits of human hearing. A major advantage of audio CDs is that the user can quickly access any part of the disc. Other discs are DVDs and Blu-ray discs. ये डिस्क्स वीडियोस के लिए उपयोग किया जा सकता है। Other storage devices like USB, flash drives and external hard disks को भी एक कंप्यूटर को अटैच करके TLMs के रूप में उपयोग किया जा सकता है। The next category under teaching aids are activity aids. The first one under this are the science exhibitions और विज्ञान मेला।
स्कूल में विज्ञान मेला का आयोजन बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इन मेलों में विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं और उनकी क्रियाओं का प्रदर्शन किया जा सकता है। द एग्जीबिशन शुड हैव सेंट्रल थीम with a few sub-themes to focus attention to a particular concept. The exhibition should be able to relate various subjects areas to provide integrated learning. The next activity aids are science museums. A science museum is a building displaying a collection of historical relics, antiques, curiosities, works of arts, works of science, literature, and other artifacts of general interest. Museums can be useful both for public education and specific classroom instructions. स्कूल साइंस म्यूज़ियम बनाने के लिए स्कूल में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। विभिन्न संगठनों से डोनेटेड आर्टिकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स और मॉडल्स बनाने के लिए छात्रों को निर्देशित किया जा सकता है और सभी वस्तुओं को लेबल करके प्रदर्शित किया जाना चाहिए। म्यूज़ियम के कमरों को अच्छी तरह से लाइटेड होना चाहिए। It should be cleaned and maintained timely. Finally, to conclude, we can say that emphasis is now laid on the use of teaching learning materials because of their multifarious values in making the teaching learning process interesting and effective. The teachers of today will need to change their teaching strategies according to the need of the hour. They have to be selective in choosing teaching aids relevant to the lessons and subjects they teach. Thank you.